السلام علیکم۔ کراچی سے خیبر تک کے سفرنامے کے ساتھ میں ہوں لقمان علی۔ آغاز کریں گے صوبہ پنجاب سے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں ہلکی اور تیز بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے۔ سرمئی بادلوں نے صوبے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ بارشوں نے رمضان مبارک کے آخری روزے ٹھنڈے کر دیے ہیں۔ پری مونسون کے شہر میں رنگ بادل برسے تو گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں ابر رحمت برسا اور جم کر برسا۔ مونسون کے شہر میں رنگ بادل برسے تو گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں ابر رحمت برسا اور جم کر برسا۔ منگل کی شام کو کالی گھٹاؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہوا۔ رات بھر رم جھم لگی رہی۔ موسلادھار بارش نے پارا گرایا تو موسم بھی خوشگوار ہو گیا۔ لاہور، گجرانوالہ، ملتان اور فیصل آباد میں بادلوں کا راج ہے، جبکہ تیز اور ہلکی بارشوں کا سلسلہ بھی وقفے وقفے سے جاری ہے۔ فیصل آباد اور گرد و نواح میں بھی بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ گجرانوالہ میں بھی بادل جم کر برسے۔ ملتان میں بھی تیز آندھی کے ساتھ بادلوں نے خوب رنگ جمایا۔ بہاولپور، اکاڑا، ساہیوال، خانیوال، رحیم یارخان، میہاڑی، اٹک اور آزاد کشمیر میں بھی ابر گرم خوب برسا۔ گجرات کی بات کریں گے۔ موسلادھار بارش نے انتظامیہ کے اعلیٰ اقدامات کے داموں کا پول کھول دیا ہے۔ اہم شاہراہوں پر بارش کا پانی کھڑا ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے۔ گجرات سے عرفان حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان، بتائیے گا، بارش کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی، گجرات میں چند گھنٹوں کی بارش نے ہی میونسپل کارپوریشن اور ضلعی انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول کر رکھ دیا ہے۔ چند گھنٹوں کی بارش سے سیوریج سسٹم بند ہونے کی وجہ سے پورے شہر میں 2-2 فٹ تک پانی جمع ہو چکا ہے اور پورے شہر ندی نالوں کا منظر پیش کر رہا ہے۔ شہر ڈی سی او آفس، ڈی پی او آفس، میونسپل کارپوریشن کے دفاتر بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گلی محلوں، سڑکوں پر بارشی پانی جمع ہونے سے کاروباری زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے، جبکہ میونسپل کارپوریشن کے افسران سیوریج سسٹم کو بحال کرنے کے بجائے غائب ہیں۔ جی، عرفان حفیظ گجرات سے آگاہ کر رہے تھے۔ رائیونڈ میں گارڈر گودام کی چھت گرنے سے 3 مزدور جاں بحق جبکہ 5 زخمی ہو گئے۔ رائیونڈ میں موسلادھار بارش کے باعث گارڈر گودام کی بوسیدہ چھت گر گئی، جس کے نتیجے میں ملبے تلے دب کر 3 مزدور جاں بحق جبکہ 5 مزدور شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر مرنے والے مزدوروں کی لاشیں اور تمام زخمیوں کو ملبے تلے سے نکال کر اسپتال منتقل کر دیا، جہاں زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ جاں بحق مزدوروں کی میتوں کو ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔ فیروزوالہ میں دوران ڈکیتی مزاحمت پر زخمی ہونے والا شخص زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقے میں گزشتہ روز دوران ڈکیتی مزاحمت پر 18 سالہ دکاندار دلشیر احمد شدید زخمی ہو گیا تھا، جو آج اسپتال میں دم توڑ گیا۔ غم سے نڈھال اہل خانہ کا کہنا تھا کہ عید کے فوری بعد اس کی شادی ہونا تھی۔ محنت کش دلشیر مختلف جگہوں پر جھولے لگا کر گزر بسر کرتا تھا۔ عید قریب آتے ہی شہر بھر میں ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر تاجر حضرات سراپا احتجاج ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس ملزمان کو فوری گرفتار کرے اور شہر میں امن و امان کو بحال کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ گجرانوالہ سے خبر دیں، جہاں پر ماڈل ٹاؤن میں فرنیچر بنانے والی فیکٹری میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا ہے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں گجرانوالہ سے، جہاں پر گجرانوالہ کا علاقہ ہے ماڈل ٹاؤن، فرنیچر بنانے والی فیکٹری میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں سرگودا میں، جہاں پر چکن پاکس کا مرض بے قابو ہو گیا ہے، مریضوں کی تعداد 80 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ڈی ایچ کیو اسپتال میں ڈاکٹرز کی کمی اور ادویات کی عدم دستیابی کے باعث مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے عثمان شیخ سے۔ عثمان، آگاہ کیجیے گا اس سے متعلق۔ سرگودا ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں چکن پاکس کے نام سے وارڈ تو بنا دیا گیا اور دن بہ دن اس میں مریضوں میں اضافہ بھی ہوئی جا رہا ہے، لیکن انتظامیہ ہسپتال کی جو انتظامیہ ان کی طرف سے نہ تو ادویات فراہم کی جا رہی ہیں، بلکہ دوائیں جو ہیں
उन्हें जो है लिखकर बाइट से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर किया जाता है और उन्हें बाइट से ही दी जाती है, और किसी भी मरीज को अंदर एडमिट करने की बजाय उन्हें बाहर भेजा जाता है। और ज़राए के मुताबिक जितने भी चिकन पॉक्स के जो मरीज आते हैं उनका रिकॉर्ड भी जो है छुपाने की कोशिश की जा रही है। जी उस्मान शेख सरगोदा से आगाह कर रहे थे। गुजरांवाला में ईद की शॉपिंग के लिए आए नौजवानों का रेट ज्यादा मांगने पर दुकानदार से झगड़ा हो गया, जिस पर दुकानदारों ने मिलकर नौजवानों की खूब दुर्गत बना डाली। गुजरांवाला जीटी रोड पर लगे जूतों के स्टॉल पर ईद की खरीदारी के लिए आने वाले नौजवानों और दुकानदार के दरमियान रेट ज्यादा मांगने पर तलख कलामी हुई। दुकानदारों ने इकट्ठे होकर नौजवानों पर थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश कर दी। इस दौरान एक नौजवान का सर आहनी चीज लगने से फट गया। पुलिस इतला के बावजूद नहीं पहुंची, जिस पर मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कराया और जख्मी नौजवानों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शेखुपुरा में एप्टमा की कॉल पर दूसरे रोज भी टेक्सटाइल मिल्स मुलाजिमीन का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का कहना था कि मुआशी कत्लेआम बंद होने तक एहतजाज जारी रहेगा। ने चंद रोज कबल टेक्सटाइल के शोबे में हुकूमती पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी थी, जिसके बाद पंजाब भर में टेक्सटाइल मिल्स मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का कहना था कि तिजारती खसारा बढ़ता जा रहा है। हुकूमत कर्जों का सहारा ले रही है, जिन्हें सूद समेत कौम अदा करेगी। उनका कहना था कि बरामदात को बढ़ाए बगैर मुआशी तरक्की नामुमकिन है, लिहाजा हुकूमत आयद पाबंदियों को खत्म करे। गवर्नमेंट बिजली देती, बिजली कोई नहीं। हर 15 दिन गैस का रेट ਜਿਹੜੇ अप कर देंगे। हर 15 दिन मिलों का जिन्होंने 2-2 करोड़ बिल से तो 3-3 करोड़ के करीब चला गया, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं गवर्नमेंट। मिल वो बंद करने के चक्कर में हुकूमत गैस नहीं दे रही, बिजली नहीं दे रही, इसकी वजह से बंद कर रही है। वर्कर सारे बेरोजगार हो रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत एक तरफ तो मजदूर दोस्ती के बुलंदोबांग दावे करती है, तो दूसरी जानिब इस्तेसाल की पॉलिसी अपना रही है, जिसको किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने धमकी दी कि अगर हुकूमत ने मुतालबात मंजूर न किए तो ईद उल फितर के बाद एहतजाज का दायरा बढ़ा देंगे। मुल्तान में वासा मुलाजिमीन ने तनख्वाहें न मिलने पर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। वासा के 20 से ज़ायद मुलाजिमीन ने कई माह से तनख्वाहें न मिलने पर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन का कहना था कि अदालती अहकामात के बावजूद MD वासा उन्हें तनख्वाहें नहीं दे रहे, जिसके बायस उनके घरों में नौबत फाकों तक पहुँच गई है। मुजाहरीन ने धमकी दी कि अगर ईद से कबल उन्हें तनख्वाहें न दी गई तो वो MD वासा के घर का घेराव करेंगे। इस दौरान एक मुलाजिम ने प्रेस क्लब के सामने दरख्त पर फंदा डालकर खुदकुशी की कोशिश की, जिसे साथियों ने नाकाम बना दिया। खानका डोगरा में ईद उल फितर के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। तमाम बाजारों, मसाजिद और अहम मकामात को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया करने के लिए ड्यूटियां लगा दी गई। DPO शेखपुरा के मुताबिक सिक्योरिटी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे बाजारों और दुकानों पर खरीदारों का रश भी बढ़ रहा है। सूरत हाल के पेश नजर मुकामी इंतजामिया ने भी कमर कस ली है और नौसरबाजों, जेब कतरों और कमाश लोगों से निपटने के लिए पुलिस ने जामे हिकमत अमली तैयार कर ली है। DPO शेखुपुरा सरफराज अहमद खान विरक की खसूसी हदायत पर SHO लतीफ गुजर ने भारी नफरी और ताजिर नुमाइंदों के हमरा मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया, दुकानों पर लगाए गए CCTV कैमरे चेक किए और अंजमन ताजरा के साथ सिक्योरिटी प्लान पर तबादला ख्याल भी किया। इंतजामिया का कहना था कि ईद के दिनों में ताजरों को मुकम्मल और फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। दुकानदार किसी भी मशकूक सूरत हाल में इतला करें, फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि मीडिया से गुफ्तगू करते हुए SHO लतीफ गुजर ने कहा, ये दोनों साइडों पे आने जाने वाले जो रास्ते हैं इन पे हम बैरियर लगाएंगे, अपने जवानों की ड्यूटी लगाएंगे, हम भी वहाँ मौजूद रहेंगे, अपर सबॉर्डिनेट मौजूद रहेंगे। इंशाल्लाह बेहतर तरीके से इंतजाम करेंगे और ये दिन अच्छे तरीके से गुजारेंगे। ईद के दिनों में इंतजामिया की भारी नफरी के साथ मुख्तलिफ बाजारों के दौरा से यकीनन ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा और वो पुरसकून तरीके से कारोबार कर सकेंगे। रहीम यार खान में ट्रैफिक पुलिस और पंजाब पुलिस की जानिब से वन व्हीलिंग जैसे खूनी खेल से दूर रखने और महफूज सफ़र का शऊर बेदार करने के लिए खुसूसी आगाही मुहिम शुरू की गई है। रहीम यार खान में वन व्हीलिंग के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस के ज़रिए तमाम रैली निकाली गई। शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर वन व्हीलिंग खतरनाक और जुर्म है, इस हवाले से आगाही मुहिम का आगाज़ किया गया। टोबा टैक्सिंग में महकमा लाइव स्टॉक के ज़ेर एहतमाम पंजाब हुकूमत की तरफ से माजूर बच्चों और बेवा खवातीन में दूध देने वाले मवेशी तकसीम किए गए। इस हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया।
महकमा लाइफ स्टॉक के ज़ेर एहतमाम पंजाब हुकूमत की तरफ से मजदूर बच्चों बेवा खवातीन में दूध देने वाले मवेशियों की तकसीम की तकरीब जंग रोड पर फुटबॉल स्टेडियम में मुनक्कद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद जुनेद अनवार चौधरी, सूबाई वज़ीर इंसदाद दहशतगर्दी सरदार मोहम्मद यूनुस खां गादी, MPA मियां मोहम्मद रफीक, डिप्टी कमिश्नर मुअज़्ज़म इकबाल सप्रा, डायरेक्टर लाइफ स्टॉक फैसलाबाद डॉक्टर मनीर शामी समेत दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। मुकर्रीन ने बताया कि वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ की हिदायत पर महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से जिला भर में 250 से ज्यादा छोटे बड़े मवेशी, मुर्गियां और बतखें तकसीम की जा चुकी हैं। तकरीब में प्रोग्राम के तहत जिला भर से कुरानंदाजी में मुंतखब होने वाले गरीब और मुस्तक 51 बेसहारा मजदूर अफराद में मुफ्त आला नस्ल के जानवर तकसीम किए गए। खवातीन जो 18 साल से कम उम्र की हैं और माजूर हैं, रिटार्डेड हैं, उनकी फलाह बहबूद के लिए उन्हीं लोगों में ये जानवर जो हैं मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं ताकि वो अपना रोजगार उनका पैदा हो सके, वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो सके। पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के तहत मवेशी और दीगर जानवरों की तकसीम का ये सिलसिला मरहलावार जारी है ताकि बढ़ती हुई ग़िज़ाई ज़रूरियात को भी पूरा किया जा सके और मुस्तक़ लोगों को रोजगार भी मुयस्सर हो सके। चकवाल कुदरती खूबसूरती और तारीखी विरसे की बदौलत हमेशा से ही सयाहों का पसंदीदा मुकाम रहा है। वादी कलर कहार से 20 किलोमीटर के फासले पर पहाड़ों के दामन में वाक़े ऐसा ही एक मुकाम वादी मलकाना भी है। झुके हुए बादल, ठंडी हवाओं के साथ रक्स करते पेड़, लुकाट के बागात और सदियों पुराने पुरस्कार मंदिर यहाँ आने वाले हर शख्स को असीर कर लेने की सलाहियत रखते हैं। साल्ट रेंज कुदरती खूबसूरती और तारीखी वर्से की बदौलत हमेशा से ही एक सियाहों का पसंदीदा मकाम रहा है, लेकिन इसके असरार सदियों की खोज के बावजूद भी पूरी दुनिया पर आश्कार नहीं हो पाए। ऐसा ही एक मकाम वादी कलर कहार से 20 किलोमीटर के फासले पर पहाड़ों के दामन में वाक़या वादी मलकाना भी है। झुके हुए बादल, हर वक्त चलती ठंडी हवाओं के साथ रक्स करते पेड़ पौधे, आड़ुओं के बागात और सदियों पुराने पुरअसरार मंदिर यहाँ आने वाले हर शख्स को असैर कर लेने की सलाहियत रखते हैं। हम बहुत दूर जगह से इधर आए हैं और इधर नहाने आए हैं, तो गर्मियों के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। तो यहाँ पे बागात और पुराने मंदिर भी हैं। दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों से गुजरकर इस इलाके में पहुँचते ही खुद को अलग थलग दुनिया में महसूस करता है। अगर इस इलाके पर मजीद तवज्जो दी जाए तो सियाहों की जन्नत जैसी ये वादी मजीद खूबसूरत बन सकती है। और यहाँ एक अहम खबर से आपको आगाह करें, PCB ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हाई परफॉर्मेंस कैंप लगाने का ऐलान कर दिया है। कैंप 3 जुलाई से 9 सितंबर तक जारी रहेगा। कैंप में 9 बल्लेबाज, 10 बॉलर्स, 6 ऑलराउंडर्स जबकि 2 विकेट कीपर्स भी शिरकत करेंगे। आपको आगाह करते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हाई परफॉर्मेंस कैंप लगाने का ऐलान कर दिया है। कैंप 3 जुलाई से 9 सितंबर तक जारी रहेगा। कैंप में 9 बल्लेबाज, 10 बॉलर्स और 6 ऑलराउंडर्स शामिल होंगे जबकि 2 विकेट कीपर भी होंगे जो इस कैंप का हिस्सा बनेंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे बुरहानुद्दीन से। बुरहान, बताइएगा इस कैंप की तफसीलात से मुतालिक। जी बिल्कुल, PCB की जानिब से नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अंदर एक हाई परफॉर्मेंस कैंप लगाने का ऐलान किया गया है और ये कैंप 3 जुलाई से 9 सितंबर तक जारी रहेगा। और PCB के मुताबिक बताया गया है कि इस कैंप के अंदर 27 खिलाड़ियों को शिरकत के लिए बुलाया गया है और तमाम खिलाड़ी जो है 2 जुलाई को ये कैंप से 1 रोज पहले नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिपोर्ट करेंगे। और जितने भी खिलाड़ी इस कैंप के अंदर शामिल किए गए हैं, सिर्फ उमर अकमल एक खिलाड़ी सीनियर खिलाड़ी हैं, बाकी तमाम के तमाम 26 खिलाड़ी जो हैं वो यंग प्लेयर्स हैं। और इन खिलाड़ियों के अंदर सच्चे असलम, इमामुल हक, साहबजादा फरहान, उमर अमीन, हारिस सुहेल, उस्मान सलाहुद्दीन, आसिफ शाकर और उमर अकमल शामिल हैं। और इसके साथ उस्मान शेरवानी, समीन गुल, मोहम्मद इरफान जूनियर, मोहम्मद मीर हमजा, रुमान रईस, मोहम्मद असरत, बिलाल आसिफ, उसामा मीर और मोहम्मद इरफान स्पिनर जो हैं बतौर बॉलर शिरकत करेंगे। जबकि 2 विकेट कीपर बैट्समैन और 6 ऑलराउंडर्स इस कैंप के अंदर शामिल किए गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हाई परफॉर्मेंस कैंप लगाने का ऐलान कर दिया है। बुरहानुद्दीन तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब रुख करेंगे सुबह सिंह का। हैदराबाद की बात करेंगे। लतीफाबाद इसका इलाका है जहां पर गलत इंजेक्शन लगने से खातून जाँ बाक हो गई। वाक़े के बाद डॉक्टर्स फरार हो गया। वुरसानी अस्पताल के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया है। आपको आगाह करते चलें, हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में गलत इंजेक्शन लगने से खातून जाँ बाक हो गई है। इसी से मुतालिक तफसीलात जानेंगे जहां ज़ेब अली से। जहां ज़ेब, आगाह कीजिएगा।
के इलाके लतियाबाद नंबर 7 में माजी अस्पताल में 40 साल अमीना खातून को तिब्बी इमदाद के लिए लाया गया तो आर्थोपेडिक डॉक्टर दिलदार अहमद खान ने मुबैना तौर पर गफलत का मुजाहरा किया और तिब्बी मुआयना और टेस्ट के बगैर खातून को गलत इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद खातून अमीना जांबाग हो गई और डॉक्टर अस्पताल से फरार होने में कामयाब हो गया है। अहले खाना ने अस्पताल में एहतजाज किया और डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया है। जी, जहां ज़ेब अली हैदराबाद से आगाह कर रहे थे। शिकारपुर के नवाही इलाके मडीजी के करीब 2 ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। इलाके में ताहाल फायरिंग का सिलसिला जारी है। पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी तक बताया जा रहा है कि पुलिस इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। मजीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा वक्त न्यूज़ फयाज हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज, आगाह कीजिएगा। ये शिकारपुर के नवाई गांव मदीजी के करीब दानी बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादम हुआ है, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए हैं। वाकई के बाद इलाके में शदीद खौफ और फैल गया है। दोनों ग्रुप मोर्चाबंद हो गए हैं, जबकि वाकई के बाद पुलिस ने जाए वक़ूफ़ पर पहुंचकर 3 लाशों को अपनी तहवील में लेकर मदीजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि शदीद जख्मियों को लाड़काना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फयाज हुसैन शिकारपुर से आगाह कर रहे थे। साबिक वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो के 64वें यौम पैदाइश की तकरीबात का आगाज़ हो गया। लाड़काना में पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो और दीगर रहनुमाओं ने सालगिरह का केक काटा। तकरीब में जीए भुट्टो के नारे लगाए गए। इस मौके पर निसार खोड़ो का कहना था कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए आमरों के खिलाफ भरपूर जद्दोजहद की। दादू में ईद करीब आते ही जिला भर में जुराइम पेशा अफराद सरगर्म हो गए। एक हफ्ते में लाखों रुपए की 3 वारदातें वकूअ पजीर हुई। व्यापारियों और सिविल सोसाइटी ने मेहर इंडस हाईवे पर धरना दिया, जिससे ट्रैफिक जाम हो गई। ईद के दिन करीब आते ही सिंध के जिला दादू में जुराइम पेशा अफराद सरगर्म हो गए हैं और बदअमनी अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। मेहर में एक हफ्ते के अंदर व्यापारियों से लाखों रुपए लूटने की 3 वारदातें होने पर सैकड़ों व्यापारियों और सिविल सोसाइटी के अफराद ने मेहर इंडस हाईवे पर 3 घंटे तक धरना दिए रखा और टायर नजरे आतिश करके सड़क ब्लॉक कर दी। धरने के बाद कराची से लाड़काना आने जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन का कहना था कि एक हफ्ते में लाखों रुपए लूट लिए गए हैं। पुलिस अब तक मुल्जिमान को गिरफ्त में नहीं ला सकी, जिससे शक पड़ता है कि पुलिस भी डाकुओं के साथ ईदी इकट्ठी कर रही है। हुकाम बाला सख्त नोटिस लें। मर्दान में मुसाफिर वैन के हवाले से आपको बताएंगे सुबह खैबर पख्तूनख्वा के इस स्पेशल सेगमेंट में। मर्दान में मुसाफिर वैन और ट्रक में तसादुम के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक जबकि 11 जख्मी हो गए। मर्दान में गोजर जोड़ी के करीब मुसाफिर वैन सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक जबकि 11 जख्मी हो गए। हादसे के बाद इमदादी टीम मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को वैन से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। चित्राल की वादी अरसोन में एक ही खानदान के 16 अफराद हैजे में मुब्तला हो गए। मुतासरा अफराद अस्पताल में दाखिल हैं। इलाज मुआवजे के मुनासिब इंतजामात न होने के बायस मरीज मुश्किलात का शिकार हैं। पाक अफगान सरहदी इलाके वादी अरसोन में एक ही खानदान के 16 अफराद हैजे की बीमारी में मुब्तला हो गए। मुतासरा अफराद के मुताबिक पाक फौज की टीम ने तमाम मरीजों को अस्पताल पहुंचाया। मरीजों ने बताया कि महकमा सेहत चित्राल की जानिब से कोई टीम या कोई डॉक्टर नहीं आया और न उन्हें अद्वियात फराहम की गई हैं। उनमें से 2 खवातीन और एक बच्ची समेत 7 अफराद को तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहाँ भी डॉक्टर्स और अद्वियात की कमी के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसकी वजह से जो बंदे कहे थे तकरीबन 10, 14, 15 बंदे वो सब बीमार हो गए। मरीजों का कहना था कि अस्पताल में बिजली नहीं, सख्त गर्मी की वजह से उनका बुरा हाल है। अस्पताल का जनरेटर भी खराब पड़ा है। मामला संभालना अस्पताल इंतजामिया के बस में नहीं। वजीर आला को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए।
پیپلز پارٹی ڈی آئی خان میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ کارکنوں نے فیصل کریم کنڈی کے خلاف احتجاجی کیمپ لگا لیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ فیصل کریم کنڈی نے 4 سال خبر نہیں لی، اب ووٹ مانگنے آ گئے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پاکستان پیپلز پارٹی گزشتہ عام انتخابات ہی سے مشکلات کا شکار نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ 2008 میں قومی اسمبلی کے حلقے سے منتخب ہونے والے رکن قومی اسمبلی اور اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر بننے والے فیصل کریم خان کنڈی بتائے جاتے ہیں۔ فیصل کریم خان کنڈی کو پارٹی میں دیے گئے اختیارات پر پیپلز پارٹی کے درینہ رہنما اور کارکنان ان کے خلاف مسلسل احتجاج کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس طرح ڈیرہ اسماعیل خان کی سطح پر پیپلز پارٹی 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ پی پی کی اعلیٰ قیادت حکومت کے خلاف احتجاجی جلسے، جلوس اور ریلیاں نکال رہی ہے، جبکہ ڈیرہ اسماعیل خان میں پارٹی کے کارکنوں کا ایک بڑا دھڑا فیصل کریم خان کنڈی کے خلاف احتجاجی کیمپ لگائے ہوئے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فیصل کریم کنڈی سے پارٹی کے تمام اختیارات واپس لیے جائیں۔ لوئر دیر میں عید الفطر کے حوالے سے سیکیورٹی پلان تیار کر لیا گیا۔ 2000 سے زائد پولیس اہلکار اہم مقامات، مساجد اور عیدگاہوں پر تعینات کیے جائیں گے۔ خورشید خان پولیس لائن بلامٹ میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں محکمہ پولیس کے ذمہ داران نے سیکیورٹی پلان کے حوالے سے ڈی پی او کو آگاہ کیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ عید کے ابتدائی 3 دنوں میں تمام پولیس اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ اور انہیں متعلقہ تھانوں میں رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عید الفطر کے دن 2000 سے زائد پولیس اہلکار 40 عیدگاہوں، 150 مساجد اور اہم چوراہوں پر ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ اور اب رخ کریں گے صوبہ بلوچستان کا۔ صحبت پور میں گزشتہ شب مٹی کے طوفان اور تیز آندھی سے بجلی کے شارٹ سرکٹ سے کریانہ سٹور میں آگ بھڑک اٹھی۔ آتش زدگی سے کریانہ سٹور کا سارا سامان جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ مین روڈ صحبت پور پر واقع کریانہ سٹور اور کولڈ ڈرنکس میں گزشتہ شب تیز آندھی کی وجہ سے شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی۔ چوکیدار اور پولیس نے مالک دکان کو اطلاع دی، مگر اتنے میں آگ نے پوری دکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے سٹور کے اندر موجود سارا سامان جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ دکان میں رکھے ہوئے 50,000 روپے نقد بھی جل گئے۔ آگ اتنی شدید تھی کہ دکان مکمل طور پر جل گئی اور دیواریں بھی بوسیدہ ہو گئی۔ کراچی سے خیبر تک کا سفر نامہ آپ نے جانا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقت نیوز۔